Very good afternoon, sir. Hello. Hi, Manish. Hi, Shefali. How are you? Hi, sir. I'm good. Thank Good, you. good. How are you? All good? Sorry, I have to be in a hurry today. Sorry, my schedule is kind of getting tight for last couple of days. So we'll just Okay. jump onto the agenda, right? Will that be okay? Sure. Sure, Perfect. sure. Please. All right, guys. So today's call is basically scheduled as kind of a workshop looking into the after I listen to the audios that you guys have provided, right? And first of all, that's not my main expertise. That's not my profession that I sell, but this is something that I do, and just take it as a something that I really study a lot to understand and grow myself. आज शेफाली जी थोड़ी सी स्कोल्डिंग होगी सो प्लीज बेयर विद मी क्योंकि कुछ हमें No, sir, not a problem. करनी पड़ेगी That will because help me yes improve. I found out a lot of good things but again there is lot many room for improvements in that Hmm. right Yes, uh, sir. so सबसे पहले एक बार शुरू करते हैं आई हैव आस्क्ड अ स्मॉल टास्क आपसे कि आप दोनों बैठ के एक साथ अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनिए एंड एक शीट पे अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो शेयर करने के लिए तो हैव यू गाइस बोथ डन दैट I have done it because yesterday she got a little busy. We were doing it. So after ओके she went, so I listened to both Amit Dwivedi and Asif. ओके परफेक्ट Asif from Bharatpur, Rajasthan, and Amit Dwivedi from working in UPPCL. Right. राइट So I सो made certain points. please go ahead and let's go Okay. through. Let's talk of Asif. जब मैडम बोल रहे थे तो the speed what I found was quite slow Okay. of Madam Shefali. Right. Okay. लॉन्ग पॉजेज वर देयर Uh-huh. जिससे लग रहा था कि शी वाज नॉट मच प्रिपेयर्ड Uh-huh. जो मैंने ऑब्जर्व किया वन थिंग मैडम सेड अबाउट यूट्यूब का कंटेंट वगैरह तो ये मेरे हिसाब से ये वाली बात अवॉइड हो सकती थी इट वाज नॉट नीडेड Okay. व्हाट हैपेंड वाज आई फाउंड दैट इट वाज नॉट सीक्वेंशियल Okay. कि एलटीसी का कोर्स के बेनिफिट्स बताते बताते फिर बात कहीं और चली गई फिर उस Uh-huh. पे आ गए तो ये बहुत ज़्यादा हेवायर जा रहा था जो Okay. ऑल्दो 13 मिनट्स का था Uh-huh. इट वाज अ 30 मिनट्स ऑडियो सो इट शुड हैव बीन क्वाइट crisp for 5-6 क्योंकि he was a good inquiry Right. he was responding in a very nice manner Uh-huh. so और जो पेंटिंग द पिक्चर था वो Uh-huh. मिसिंग था कि भाई उसके बाद क्या होने वाला है आपकी Uh-huh. लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं जो हमारा जो स्क्रिप्ट का purpose was to first introduce, tell about things, know the gaps, then Right. make sure that person gets connected with the teacher Uh-huh. unless and until majburi na ho fees batana. But Correct. fees was also told. Uh-huh. So that means मैम ने बोला मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगी वो 3 बार बोला 3-4 बार जो कि लग रहा था कि जैसे हम बोल रहे हैं बट हम फील नहीं कर रहे हैं राइट Right. उसकी Right. वजह से हमें 3-3 बार बोलना पड़ा Uh-huh. अब let me talk of Amit because this much even she doesn't know. She went away, so I Uh-huh. was listening to her because she was writing hers, I was writing hers. So I think about Asif she must have written, but Amit Dwivedi Yes. she has not written, so she will share her points. Now, can I Let's quickly let's come to? yeah let's come to Shefali for a moment because I think she have covered many of those points. So let Hmm. Shefali also introspect what you found out in your recording. Sir, the first thing that I found was the gaps. Okay. As sir also said, those long pauses. And Uh-huh. initially, I observe whenever I'm speaking, I take quite many pauses while speaking. So this is one thing. And one more word which was being repeated again and again was fine. Okay. Though it was not the word that I heard when I heard it, basically. Mhm. Okay, we'll come to it. So, and I missed this saying मात्र 10 से 12 students एक बैच में होते हैं. I mean, Uh-huh. I missed the word saying मात्र Uh-huh. 10 से 12 students. And as I said, as sir also mentioned that on this point, um, when I say I strongly recommend,
So I also wrote it that the tonality should have been changed, and I repeated it. It was like something which was same pitch throughout. Right. Right. So And One last thing I want to say yes, here. yes, Manish, please. When she said, "ना आप Zoom में comfortable हैं या Right. Right. तो That it part. could have been given an option Google Meet also." Mhm. Because people are sometimes quite comfortable on Google Meet, and first time users of Zoom, they are not able to connect. They always have issues. We can always say Google Meet and Zoom or any platform, we can do that. But for So, that matter, WhatsApp call can also work out. hmm, Just a suggestion, because it's true, about true, video interaction rather than correct. spending too much time explaining Zoom. If they're comfortable with Zoom, perfectly well. If they're not, you Hmm. can have a WhatsApp call, WhatsApp at call, least for the that first is one. Yeah. true. Acha, Manish, anything like any standing point in the other notes? Any quick points that you want? On Amit Dwivedi, yes. Mm, Actually, क्या था, Amit Dwivedi was not a very response-giving inquiry. Mhm. I feel that So Amit there was a Dwivedi young is. guy, sorry, there was no names there, and Mhm, the recordings missed the initial intro for all the recordings. So no next time problem. when you record, kindly introduce from the hello, Hmm, so from the stage one, from the 0 second. So I don't know the right, names. So one was a right. young guy, and one was from the UP electricity board guy. Electricity So board guy. We are okay, talking of now electricity board guy. okay. He was Amit Dwivedi. So, in my case, what I feel is मतलब we should have already very good understanding कि जो electricity department में काम करते हैं, they are very poor listeners, Right. right? Mhm. Because their personality is all deep with all that corruption and all, so they least listen and they just want to. So वो grounds अभी बन नहीं पाए थे. Although he was a nice guy, and ये जो प्रोग्राम है शुरू होता है, फिर कोई मैम ने थोड़ा सा शुरू किया, ये जो प्रोग्राम शुरू होता है फिर कोई और क्वेश्चन आ गया उसके बीच में, विच आई फाइंड वाज कि जो चीज सीक्वेंस में होनी चाहिए वो शायद वो समवेयर मिसिंग हो रही है, और इस वजह से एक पहली बात तो इट इज एन ऑडियो कनेक्टिविटी, दूसरा somebody इज completely न्यू, Right. तो वहाँ कनेक्टिविटी लूज हो जाना इज यू नो इज लाजमी. एंड देन शी सेड कि 12,000 फीस कोट की गई है. कोट तो थी नहीं, हमारी एक्चुअल फीस है 12,000, Right. राइट? दैट वाज अ थिंग. स्पेशल फीचर्स फिर लास्ट में मैम ने बताया, कोर्स कंप्लीशन पे हम ई सर्टिफिकेट भी देते हैं, Mhm. और फिर मतलब if I analyze Amit Dwivedi's inquiry with Asif, so Amit Dwivedi's was on a lower tonality, although he came for a video meeting and we had a nice talk. Mhm. So this is what I feel. This much I have just seen. Perfect. All right. Inquiry was less responsive. So उसमें उसका पहले feeling arouse करना बहुत जरूरी है. He was not giving much of a discussion, Mhm. much of a talk. तो मुझे लगता है ऐसे केस में जब हमें लग रहा है उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वेल सर, मेरे को लगता है कि अगर मैं आपकी एक मीटिंग हमारे सीनियर टीचर से कंडक्ट करा दूं, तो आप टीचर के सामने खुल के अपनी प्रॉब्लम्स भी बता पाएंगे. आपको क्या लगता है, ऐसा ठीक रहेगा? तो हमें खुद ही वो क्वेश्चंस पूछ के, क्योंकि जितनी भी लॉन्ग इंक्वायरी वो जा रही थी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं आ पा रहा था, although he came for the meeting, right? Abhi this guy only, previous one which we both shared the feedback. So Mhm. this guy got to know everything. He was also fixed up also for meeting, Uh-huh. but he did not turn up. He did not And have. 2 days after he says, "मैम गुड़गांव में नया बैच कब से शुरू हो रहा है? When is the branch starting?" So Was this the because Jaipur I'm guy? Jaipur guy we हाँ, are talking. Okay. no, the Bharatpur, Rajasthan. Bharatpur. Okay. So I also discussed with मैम, मैंने कहा जो ऑलरेडी अभी ऑनलाइन कोर्स की इंक्वायरी कर रहा है 2 दिन पहले, Mhm. वो अब गुड़गांव भी शिफ्ट हो रहा है. So Mhm. this seems little strange behavior, but we don't know. Mhm. So that is it. I'm done. Cool guys. So again, starting from the very start, Shivali, first of all, I really loved your voice because I only heard the audio recordings. yeah, Manish has only shared the audio part of it. I really love your voice. I really like the way you come across over the call. In terms of that, if the same call
in the same tonality and same discussion happened with me, the guy could have banged the phone in first 3 minutes. So that's kudos to you that you are able to engage with that person for such a long time. That's great. Now coming to the points that I think let's hear something out, because एक साथ इकट्ठे सुनते हैं. Let me just play first 3 minutes of the call of Asif, Bharatpur, Rajasthan. All right, that's a very typical call, I think so. Normally आपको इस तरह की calls आती हैं. बंदा interested क्या होता है, वो inquiry कर रहा होता है उस वक्त पे, ठीक है? So let me just play it and raise the voice. गुड आफ्टरनून ये आप स्पोकन का कोर्स कराते हैं ना, इंग्लिश स्पोकन? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ सर, You guys can hear it? क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? या मैं स्पीकिंग का कोर्स करना चाहता हूँ मैडम। कहाँ से हैं आसिफ जी आप? मैं राजस्थान से हूँ। ओके, आप राजस्थान से हैं। फाइन, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आसिफ सर इंग्लिश में आप? मैम मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता हूँ, मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ दूसरे से। राजस्थान में बेसिकली कहाँ से हैं आप आसिफ जी? See, Shefali, first thing, अगर आपने script में भी आप जाएंगे, I'm just open up the script and let me share the screen also so that we can also all refer back to this. हमारा जो मेजर एरिया है, वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, मनीष जी के साथ भी मैंने ये बात करी थी पीछे से, कि अगर अभी हमारा कुछ भी लीड रिजल्ट नहीं आ रहा, तो द ओनली थिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन इज टू स्पेंड मोर टाइम इन प्रोबिंग द प्रॉब्लम्स, प्रोबिंग द पेन पॉइंट्स. अभी मैं 1 मिनट के वापस आपको लेके चलता हूँ. आपने सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन ले लिया, विच इज फाइन. आपने उनसे प्रॉब्लम के बारे में भी पूछा, उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया, मैं इंग्लिश नहीं पूछना चाहता. इमीडिएट आप दोबारा से उनके एक फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आ गए. अगर मैं दोबारा इसको प्ले करूं, गुड आफ्टरनून मैम, ये आप स्पोकन का कोर्स कराते हैं ना, इंग्लिश स्पोकन? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ सर, प्लीज बताएं क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं स्पीकिंग का कोर्स करना चाहता हूँ मैडम। कहाँ से हैं आसिफ जी आप? मैं राजस्थान से हूँ। ओके, आप राजस्थान से। फाइन, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आसिफ सर इंग्लिश में आप? मैम मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता हूँ, मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ दूसरे से। राजस्थान में बेसिकली कहाँ से हैं आप आसिफ जी? गॉट द पॉइंट? यस सर. देखिए, पूरी कॉल में आपके पास पहले 30 सेकंड्स होते हैं जब आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, हु यू आर, ठीक है, हु द अदर पर्सन इज, कहां से है, क्या नाम है, और ये सब पूछने से पहले आपको उनसे परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है. टू हेल्प यू, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, एंड और क्या मैं आपसे जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ठीक लगे, दैट यू हैव टू मॉड्यूलेट अकॉर्डिंगली. After that, one more important thing, and this is for general principle, please don't call any inquiries sir or madam. You are there to help them. You are at the same level, they are at the same level. No one is senior and no one is junior than you. Asif, it creates kind of friendliness. Okay, somebody is speaking to me. Sir means that a sales girl is there or a sales guy is there, so I can show them off. Once my objective is clear, I can show them off. When you speak with the direct names, it creates a kind of an authority, but we are at the same level. I don't know if you guys know that when you go to barista, they never call you sir or madam. They call you by your name. Manish, coffee ready. Shefali, coffee ready. Gaurav, coffee ready. So it's their instruction that they are friends and they are not servers. They are baristas. They make coffee. They don't serve us.
There are friends, the coffee friends who create great coffee. So we are their carrier friends. तो पहला पॉइंट ये सर वाला बिल्कुल छोड़ दीजिए, सर मैडम कुछ नहीं. If you feel by the tonality of somebody's voice that he is quite senior to you and you feel a little intimidated by calling them by their first name, then you may use Mr. or Miss. But never use sir, at least in the conversation when you are having on the phone. वो आपको शेफाली जी सीरियस लेना छोड़ देंगे उसके बाद. ठीक है. अच्छा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज मिस्ड, हमें मतलब पूरा 15 मिनट सुनने का जरूरत नहीं था, मैंने सुना वैसे पूरा का पूरा, लेकिन आज की जितना भी फोकस है ना, मैं फर्स्ट 3 मिनट्स ऑफ बोथ द कॉन्वर्सेशंस पे घुमाऊंगा. ठीक है. मेजरली आप ना प्रॉब्लम पता नहीं कर रहे, आप सिर्फ जो आपके मन में चीजें थी इसमें, बस आप वो बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अभी आप इसको दोबारा सुनने का इस कॉल के बाद, आपका ये मोनोलॉग था, मतलब हार्डली दिस गाय, it is a very good inquiry, but what happened, it was a classroom training that was happening. That guy was not asking you anything, you are not pushing him to ask you questions. ये हमारा रोल है कि उसको इंटरेस्ट करके उससे पूछा जाए कि आर यू इंटरेस्टेड, अदरवाइज व्हाई टू वेस्ट माय 15 मिनट्स. आप अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे ले, अभी आपने जंप किया जैसे, और जो वर्ड की बात कर रहे थे, आपने हर चीज ना खुद से, जैसे हम करते थे ना, मैं मैथ्स में करता था बहुत ज्यादा, सो जब हमें कुछ भी नहीं आता था ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो हमें बोला था स्टेप मार्किंग होती है, ये हमें पता था, तो हम लास्ट में वो 3 बिंदी डाल के ना, therefore hence proved. This was a joke in all my school life, and most of us used to do that. So every maths question ends with that, because we consider कम से कम half marks तो देगा 4 लाइनें पढ़ के वो steps के, और दे भी देते थे, खैर ऐसी बात नहीं है, they were kind enough, but it was never proven by us. In similar way, once you hear your recording, you will see a word arising, isn't it? Isn't it? Isn't it? I could have counted more than a dozen times the word use. So basically you are asking, you are not waiting, you are not getting a reply, and you are jumping on to the next one. So let's go ahead for few more seconds here. Sir. Bharatpur sir. Fine. So क्या स्टूडेंट है या प्रोफेशनल? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ. आप स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ मैकेनिकल से. मैकेनिकल? हाँ जी. ओके. So प्लीज बताएं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंग्लिश में? आपने कहा. See, this is the third time you are asking क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो. अगर आपको उसने वैसे बता दिया और आपने तब उसका जो धागा था वो छोड़ दिया और दूसरा धागा पकड़ लिया, और आपने दोबारा से उसको फिर रेज किया, अब की बार वो आपको जवाब नहीं देगा. देखिए अब आप बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है और आप बोल ना पा रहे हो. नहीं, मतलब यही फील होता है कि जैसे माहौल में अगर सामने वाले बोलने वाला हो, मैं भी बोलूं, तो शायद कुछ साल में जब मैं अकेला रहता हूँ ऐसे माहौल में हूँ कि वहाँ मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा माहौल ही नहीं मिल पाता है. हाँ, यस मैम. ओके. क्या कॉलेज में स्टूडेंट्स से या टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है? नहीं, मैं ऐसा कॉलेज मेरा अभी फिनिश हो गया है, मतलब मेरी एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया. अभी तो मैं कंप्लीट हो गया है. क्या ग्रामेटिकल एरर्स भी होती हैं सर? आप हाँ बिल्कुल होती. सिंपल और सिंपल स्क्रिप्ट में से प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो और उनके आगे बोल रहे हो, and you are not proving is a technique where you know what the answer should be, but you are trying to get words from other person's mouth. Over here you are dictating. ठीक है, ये आपको हमने एज अ वो जो होता है ना कुंजी, वो कुंजी बनाई है हमने स्क्रिप्ट में.
क्वेश्चंस तो आपको लेके आने हैं। हमने हम्म। आपको बता दिया या आपके एक्सपीरियंस ने आपको बता दिया कि लोगों की प्रॉब्लम हेजिटेशन है, मे बी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, मे बी लो कॉन्फिडेंस है फॉर व्हाट एवर रीजंस। ये मेन हमने 3-4 हाईलाइट किए थे अपने स्क्रिप्ट में, राइट? ये आपको Yes. पता है, सो दैट अगर अ पर्सन इज नॉट outspoken and he is not coming clearly in front of you, which most of the people will not by themselves, you have to probe in those directions. You have to really probe in those directions और उसमें चलते ही जाना है आगे, रुकना नहीं है, मतलब जंप नहीं करना वहां से। अगर उसने एक बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दूसरी प्रॉब्लम हमें हेजिटेशन या लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली गाइस, नो वन गिव्स एनी डैम अबाउट ग्रामेटिकल एरर्स। मतलब अगर मैं खड़ा होके बोल सकता हूं ना, मुझे ग्रामेटिकल एरर का लेना देना ही नहीं है अनलेस अंटिल आई एम राइटिंग अ एग्जाम। अगर आप किसी बंदे को कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि वो बोल ले, वो बात कर ले, वो कॉन्वर्सेशन को हेल्ड कर ले किसी लेवल पे, he will not worry about, and I think people who speak fluent English, they don't give a damn about grammar. It comes naturally to them. Nobody thinks अच्छा ये tense ये वो ऐसा कुछ आता तो नहीं है, ये तो अपना जब लहजा बन जाता है तो बन जाता है वो। So it is not a pain point for the end customer कि मैं ग्रामेटिकल एरर करता हूं, मेरे को वर्ड्स ही नहीं आते बोलने के लिए, मेरे को फॉर्मेशन ही नहीं होती सेंटेंस की, मेरे को लगता है ये पता नहीं ऐसे बोला जाएगा ये ऐसे बोला जाएगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती बोलने की, वर्ड दिमाग में होता है जबान तक आता है लेकिन मैं हिचकिचा जाता हूँ बोलने में। ये मेरी रियल प्रॉब्लम है। इसमें मेरी ग्रामर ठीक होगी नहीं होगी ये तो बहुत बात की बात है, ये तो मतलब एक आई वुड से इट इज हाई लेवल थिंग फॉर मी टू थिंक ओवर। So from the customer perspective you have to spend time. अब मेरे 4 पॉइंट मैंने नोट किए थे दोनों कॉन्वर्सेशन सुन के। We will go through again for 1 minute more. First observation, there is way too less time spent on actually asking the problem questions before jumping to course. अभी अगले 2 मिनट के अंदर आप कोर्स पे जंप कर जाओगे। उसने आपसे कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा लगभग और आपने मतलब बिना, आप देखना शेफाली अब आप सुनोगे ना जब इसको तो हार्डली एनी ब्रेक्स आर देयर एंड यू हैव जस्ट लाइक पूरा आपने दे दिया उसको, क्लास दे दी उसको आपने। एंड द ओनली थिंग ही इज सेइंग यस बिकॉज यू आर सेइंग इजंट इट, यस इजंट इट, यस इजंट इट, यस। ये जितनी क्वेश्चंस थे ना, जो बातें आपने बताई, आपका ट्रिक, आप मैजिशियन हो, आपका ट्रिक ये होना चाहिए वो आपसे पूछे विल यू बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट माई कोर्स? क्या मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको इंटरेस्ट कर रही है? यस मैम कर रही है। आपको इसमें क्या बेहतर लगा, आपकी क्या चाहत है, आप क्या करना चाहते हो? वंस यू कंप्लीट दिस, जो मनीष जी ने भी बोला कि देयर वाज मिसिंग द पेंटिंग, द पिक्चर वाज मिसिंग, वी आर जस्ट सेलिंग। शुरू में वो 3-4 क्वेश्चंस हमने थोड़े से फोर्स करे in whatever variation, and then we very quickly jumped on to the course detailing program. And not only course detailing, मतलब towards the end in a flow, बिल्कुल खत्म, मतलब मनीष जी के साथ कॉल अरेंज कराने तक और उसके बाद जूम तक समझाने तक इट वाज अ मोनोलॉग। अगर ये बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, why to waste another person's time? ठीक है, तो आपको ये पूछना है हर स्टेज के ऊपर। मे बी कई बार जरूरत भी नहीं है मनीष जी के साथ कॉल कराने की, मतलब फॉर गेटिंग एडमिशन इन ACL इट इज नॉट नेसेसरी दैट 1 hour is spent with Mr. Manish. If he is good enough in sense कि he is motivated enough, तो उसको बोला जी the person will turn up. ना ये रहा, अभी फीस पे कीजिए, आज की आज करते हैं इसको, आपका शुरू कराते हैं प्रोग्राम। अगर आपको दिक्कत है, कोई आपको हेजिटेशन है, then what can I offer? A special discussion with our senior most faculty member. ये प्लेट में देना नहीं है, परोसना नहीं है। ये तब करना है जब वो हेजिटेशन करे, अभी ज्वाइन करने से, इमीडिएट ज्वाइन करने से। भाई उसने खुद ही कॉल किया ना, किसी ने हाथ पकड़ के तो उसके नंबर हमें नहीं भिजवाए। We haven't collected the numbers from any third party source. They have come directly to us. Yes sir. After seeing an ad or whatever they have come, और अभी वो हमसे बात कर रहे हैं।
तो दे आर इन नीड फॉर श्योर, बट हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए. मतलब माय गेस बोथ ऑफ दीज इंक्वायरीज डिडंट टर्न अप. मतलब मेरा गेस है, आई डोंट नो इफ दे हैव टर्न्ड अप फॉर द सेकंड कॉल और थर्ड कॉल, बट आई डोंट थिंक सो दे हैव टर्न्ड अप. पहला वाला तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका, बस वो यस 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 कर रहा था, कब आप फोन रखो वो भी काट दे. ही वाज जस्ट बीइंग वेरी वेरी पोलाइट. मैंने वही कहा, अगर ये लड़का होता आपकी जगह तो वो बीच में काट के भाग गया होता. It's just a little decency that people have, that they stay when the woman is speaking with them. ठीक है. तो सबसे ज्यादा शेफाली आपको क्वेश्चंस को ऐसे पूछना है, अभी करते हैं हम, उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे एक मॉक करते हैं 2 मिनट का, कि आपको वहीं रहना है, तब तक रहना है जब तक वो दर्द चुभने ना लग जाए. और आप किसी भी टॉपिक पे ये कर सकते हैं, किसी भी चीज पे आप कर सकते हैं, बस आपको पूछते रहना है. जैसे एग्जाम्पल हमारे कहावत में बोलते हैं, जब शादी होती है तो बहू से, नई नई जो बहू होती है, नई नई जो सास होती है ना, तो उनके अपने अपने जो फ्रेंड्स होते हैं वो इतनी बार पूछते हैं, इतनी बार पूछते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है. वो फोर्स हो जाते हैं बताने के लिए कि कुछ ना कुछ सोच के बताना ही पड़ जाता है उनको कि क्या ठीक नहीं है. So similarly, when a person has stated he has hesitation, he didn't had the mahal to speak. अब उसके आगे वाले लेवल पे भी तो जाइए. अच्छा, कोई वाकया हुआ आपके साथ ऐसा, जब when you feel kind of ashamed or let down, क्या आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी, अगर वर्किंग क्लास से कोई आ रहा है, क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप मिस कर पाए या नहीं उसका फायदा उठा पाए? क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो बेहतर करता है, बात करता है, अच्छा लगता है आपको? क्या चीज अच्छी लगती है आपको? आप अगर उस लेवल तक पहुंच जाएं या उससे बेहतर हो जाएं, तो व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ, ये प्रोबिंग है. कि उनको वन वर्ड आंसर, अगर आपको किसी भी 2 या 3 क्वेश्चन में 1 वर्ड आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब आपकी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी इज कंप्लीटली ऑफ द रोड. यस और नो अगर आपको कोई जवाब दे रहा है तो आपको क्वेश्चन ऐसे बदलना है कि वो यस और नो में जवाब ना दे पाए. राइट सर. जिस कॉल में आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बात करेगा और आप कम बात करोगे, वो कॉल सक्सेस की तरफ ज्यादा जाएगी और दूसरी वाली लगभग कहीं नहीं जाएगी. मतलब उससे चांसेस ही नहीं है. Even if somebody is debating you about telling यार ये तो कोर्स अच्छा नहीं है, वो नहीं है, he is still contributing. That is much more interested guy because he really want to understand things. Okay, so no jumping to the course till the time that person actually ask कि आप बताइए यार बहुत हो गया, मैं समझ गया आपकी बात. जब लोग कह देना समझ गया, या आप उनसे पूछिए क्या does this make sense, anything more on this, can I tell you about the course, should be the last thing in your mind. Second, not letting the other person answer. I already covered that. It's like a monologue in a sweet voice and the other person just uses one word, yes, yes and yes. अगले 3-4 मिनट के बाद ना आप देखना, उसके बाद जो 10 मिनट का मोनोलॉग है वो बस yes yes पे टिका हुआ है. Hardly he contributed anything. Hardly. Yes, okay, yes, okay. One very important thing I think we missed in the script, and we have to add it after hearing these 2 calls and another one which Manisha shared. We have completely forgotten to use strengths of ACL. ACL को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हमने कहीं पे, सीधा कोर्स के ऊपर पहुंच गए. We haven't used like we are ACL is I don't know how Shefali, if it is a call you are ringing me, just have a one minute call. कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं? Hello. Hello, hi. Actually, madam, I am inquiring about this ad I saw on social media. This is for the program. What the hell am I asking? Okay. So no. So first word should be hi, good morning, ACL or American Center for Language. I think American Center for Language we can use that, na, Manish? No, but we use only ACL. But can we use that in? We should not. We should not.
Because there is something, no, not nothing. Actually, because of this, some other tout kind of institutes get a leverage out of it, because it is a generic name. And so we use our acronym only because we are registered as ACL Education, ACL as our trademark. We can use ACL Education. We can use ACL Education. We can use ACL Education. That will be better because we are acleducation.com. But somehow we don't use our complete full form because it gives leverage to some other useless institutes. That's okay. Because please understand that these scholars are no longer coming from the same closed geography area. They have no idea. So we have to somehow first introduce who we are. We are ACL Education, that is perfectly fine. If we are calling it ACL Education, we have to tell ACL Education. And then somewhere in between, when we have heard about them, or they ask you, can you tell me something about yourself? Mostly people don't, they're too afraid, they're not asking. So, जब आपने problems probe कर ली, then you have to insert, let me tell you something about our institution. Our name is ACL Education. We are here for last 26 years. We have trained so many people. They have become so and so, whatever the three strengths. If you look at anything, that even when you go to the LTC page or PCC page, you will see those three batches. 26 years, X number, 6 lakh plus people we have trained or touched or whatever. So just we have to formulate into our speech. उन्हें पता तो लगे वो किसी टॉम डिक एंड हैरी के साथ बात नहीं कर रहे. It's not a tutor kind of a thing that there is only one tutor and he speaks. You have to tell that there are multiple faculty members, 26 years experience, and we have these courses. And now if you're interested, can I tell you about whichever course you want to tell? Ask them if you are interested. If you are not interested, thank you very much. Okay. So the theme is basically get the other person interested. When you are interested, you ask questions. When the other person is interested, they ask questions, relevant questions. When they are disinterested, they resolve back to one-word monologues, or they don't say anything. Yeah, okay. That's a sign of disinterest. Right? So let me just play for a few more seconds, and then we can have a dummy interaction. बिल्कुल यही नॉर्मल है, मतलब चीजें समझ तो लेते हैं हम किताब वगैरह से या फिर यूट्यूब वगैरह से भी देखते हैं जो भी वीडियो वगैरह है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में ऐसा लगता है कि अब पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, अब कैसे निकालें सेंटेंस. ओके, मतलब हम कह सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है. यस मैम. ओके फाइन. अभी आपने कहा असिस्टा कि आप YouTube पे वीडियोस भी थोड़े से देखते हैं, दैट मींस सेल्फ अवेयरनेस है और आप फोकस ऑन करना चाहते हैं उसके ऊपर, राइट? यस मैम. कितना कंटेंट आप इंग्लिश में देखते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, या कुछ ऐसा है? एक बार ऐसा लगता है कि चलो कुछ पढ़ा जाए, मतलब इस पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, मतलब मेहनत करी जाए, तो फिर कोशिश करते हैं. लेकिन उसको मतलब जैसे ग्रामर वगैरह में हम देखते हैं या फिर सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से बोले जाते हैं, किस तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना, हम किसी के सामने कैसे बात करें और बात को कितनी ज्यादा आगे तक की जा सके, ज्यादा से ज्यादा. यस मैम. तो उसमें तो मतलब कहते हैं कि बेसिक से शुरुआत ही नहीं हो पाती है. ओके आसिफ सर, मैं जितना आपकी प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई हैं, अब आप सॉल्यूशन पे भागने वाले हो. उसने बहुत अच्छी बातें बोली अभी आपको, मतलब आप कहीं से भी कोई भी कोना पकड़ सकते हो. सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं होती, समझ नहीं आता कहां से शुरू करें. अब सेकंड स्टेज पे जाना है. उसने गेट ओपन कर दिया. The reason he called, he has opened his heart to you. He has told you exactly what was it. कुछ वर्ड्स उसने आपसे भी उधार ले लिए, जो हेजिटेशन, सेंटेंस फॉर्मिंग, ग्रामेटिकल एरर आपने शुरू में इंट्रोड्यूस कर दी थी वेरिएशन के साथ, उसने वो पिकअप कर ली और उसने बताया. लेकिन इसका उसकी लाइफ में फर्क क्या पड़ रहा है, ये तो पूछा ही नहीं हमने. और वो कितना ईगर है इसको सुधारने के लिए, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं.
राइट सर। बट आप एक्शन लेने के लिए क्या तैयार हो? डू यू थिंक यू आर रेडी? मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए आपके। जस्ट क्रिएट अ रेपो शिफाली। व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, स्क्रिप्ट आपको समझ आनी चाहिए, आपके सामने जरूर होनी चाहिए, जस्ट टू सी ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक। ये स्टेजेस हैं, वर्ड्स नहीं है। ये स्टेज टिक होनी चाहिए, मुझे इस स्टेज के थ्रू उसको लेके जाना है। लेकिन जब मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं तो आपने शुरू के 10-20 सेकंड के अंदर उसका नेम, ईमेल, जो भी लेना है वो ले लीजिए, इनिशियल इंफॉर्मेशन ले लीजिए, और उसके बाद आप बिल्कुल बस जैसे बात करते हो ना, आपने बात करनी है उनसे। और बात को छोड़ना नहीं है जब तक आप ये ना समझ लो कि ही इज रियली ओपनड अप टू यू, ही इज रियली फीलिंग द पेन, दैट इसका सॉल्यूशन करना जरूरी है। और जितना आप उस पेन एरिया में उसको घुमाते रहोगे, उतना उसको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि आप उसकी बात समझ रहे हो। जब उसको समझ आ जाएगा कि आप समझ रहे हो, हिज कॉन्फिडेंस विल रियली शूट अप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसके लिए कोई मतलब आप बस जेन्युइन होके उससे बात करो, जंपिंग नहीं करनी। आपने सोचना है कि जब इसने कुछ बोला तो इस बात को मैं कहां तक आगे तक लेके जा सकती हूँ। हमें सिर्फ 2 या 3 प्रॉब्लम चाहिए होती हैं, और कई बार एक प्रॉब्लम भी इनफ होती है किसी को वो रियलाइज कराने के लिए कि एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले उसको एक्शन के लिए रेडी करना है, फिर उसको बताना है अच्छा ये ऑप्शन है आपके पास, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। उसके पास टाइम है, वो रेडी है, सब कुछ है, तब अब हम एक करते हैं, कोशिश करता हूं मैं आपके साथ। मैं शेफाली बनता हूं या मनीष बनता हूं, आई विल हैंडल द कॉल। और शेफाली आप कोशिश कीजिए एज अ नॉर्मल इंक्वायरी, वो वाली इंक्वायरी नहीं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, somewhat interested, somewhat disinterested, like same like this guy from Bharatpur. Could you unshare the screen? Okay, sure. और मैं फोकस सिर्फ करना चाहूंगा प्रॉब्लम एरिया के ऊपर ही, हम वहां पे बंद कर देंगे, वहीं पे उसको मैं प्रॉब्लम में थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कैसे कोशिश की जा सकती है। क्योंकि प्रोबिंग एरिया जितना ज्यादा आप इसे सुन लेंगे, तो इस वीडियो को जब व्हेन गौरव शेयर्स विद मी, तो वी विल कट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एंड यू कैन लिसन टू इट फॉर योर रेफरेंस कि किस तरीके से प्रोबिंग की जा सकती है। एंड इट इज ऑल अबाउट प्रोबिंग वंस दे फिक्स अप। Gaurav, did you watch my videos? Yes, I did watch your video. We'll discuss it separately. Okay. Yeah. So. Yes. तो शिवाली आप कॉल कीजिए। Hello. हाँ. Sir. Hi. Hello. Hello. Hi. Gaurav this side from ACL Education. How may I help you? सर मैंने एक ऐड देखा था फेसबुक पे, एक प्रोग्राम था, उसके लिए मुझे ज्वाइन करना चाह रही थी मैं। तो मुझे इंग्लिश सीखना है। जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शेफाली। शेफाली जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जस्ट इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ सर, मैं लखनऊ से हूँ बेसिकली। ओके जी, परफेक्ट, ग्रेट। तो शेफाली, यस, वी आर रनिंग an institute, ACL Education, and we are conducting various courses. आपकी सही से मदद करने के लिए, बिकॉज वी हैव कपल ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, आपकी सही से मदद करने के लिए थोड़ा सा क्या मैं और आपके बारे में आपसे सवालात कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? जी जी, यस सर, प्लीज। शेफाली, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, लाइक आर यू वर्किंग, यू आर अ स्टूडेंट, कहाँ से स्टडीज करी? हाँ सर, मैंने वर्किंग नहीं हूँ, मतलब मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है मेरा। और LU से ही किया है मैंने। और आगे जॉब ढूंढ रही हूँ अभी फिलहाल। ऑलराइट। और आपको इंग्लिश कोर्स करने का आइडिया कैसे आया? मतलब व्हाई डू यू थिंक दैट यू नीड एन इंग्लिश कोर्स? कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप किसी तरह की? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं सर, बट हाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आना जरूरी है, क्योंकि सब लोग बोल लेते हैं, मुझे नहीं आती है। मुझे लगता है शायद सीखी जा सकती है अच्छे से। ओके, ग्रेट। सो इंग्लिश सीखी जा सकती है, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। यस, इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है, और इसके बहुत ही कैरियर को लेके अगर बात करें, यू विल गो अहेड एंड डू एंटर लॉट ऑफ इंटरव्यूज। कुछ अभी प्लान किए हुए हैं? कुछ आप कहीं पे एप्लीकेशंस वगैरह कर रहे हैं?
नहीं, अभी अप्लाई नहीं किया है सर। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कहीं पे जॉइन। एक्चुअली मैंने कभी जॉब की नहीं है, तो ट्राई कर रही हूँ अभी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप चाहते हैं उसको अपने इंग्लिश स्पीकिंग को फिनिश करना, सो इन दैट एरिया कहाँ ज्यादा दिक्कत आती है आपको? सर बोल नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाते हैं। बोलने के वक्त में क्या मतलब दिमाग में जैसे बात होती है कई बार और हम निकाल नहीं पाते उस तरीके का, या बिल्कुल ब्लैंक कई बार हो जाते हैं? कई बार सर बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं। बोलते बोलते रुक जाते हैं। ओके। कभी ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग सिनेरियो हुआ कि बड़ा अजीब लगा कि बात भी थी, दिमाग में सब कुछ था, लेकिन बस हम हिचक करके पीछे रह गए? हाँ, कभी ऐसा होता है सर कि लगता है मुझे ये चीज पता थी, बाद में याद आ जाता है, लेकिन उस टाइम बोलने के टाइम पे नहीं याद आता है सर। और आप बिलीव करते हैं कि आप मेहनत करके इस चीज को सही टीम के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ इसको आप सुधार सकते हैं और बेटर हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है सर, इम्प्रूव तो कर सीख सकते हैं सर। वेरी गुड, ग्रेट। बिकॉज शेफाली, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज वी रिसीव लॉट ऑफ इंक्वायरीज। रोज हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं, और हम जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हमारा एक मेन प्रिंसिपल है कि अगर आप चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको सही जगह गाइड करने के लिए, लेकिन कई बार होता है लोग चाहते हैं कि जस्ट रेडीमेड करके उनको कुछ परोसा जाए, तो वहां कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपने इंग्लिश वैसे आपके कोर्सवेयर में थी, स्कूल में कहाँ तक आपने पढ़ी है इंग्लिश? हाँ, वैसे तो मैंने आईसीएसई बोर्ड से ही किया है, सेंट मैरिज ओके से। तो हाँ, थोड़ा माहौल तो रहा ही है मतलब ओके। इंग्लिश का स्कूल में, लेकिन इतना ज्यादा मतलब कंपल्शन नहीं था कि हाँ बोलें। और बेसिकली मैं यूपी बोर्ड से भी रही हूँ, क्योंकि 10th और 12th ही मैंने बस आईसीएसई बोर्ड से किया। ऑलराइट। सो अगर आपको ये माहौल मिले, लेट्स अज्यूम कि आपको ये इंग्लिश बोलने का माहौल मिले, जहां पे लगभग आपके लेवल के और थोड़े से आपसे बेहतर लेवल के लोग एक साथ मिलजुल के प्रॉपर डेडिकेशन के साथ एक मेंटर के साथ बैठ के आपको ये ट्रेनिंग कराया जाए, तो कैसा आप फील करेंगे? आई थिंक सर हेल्प हो जाएगी काफी, क्योंकि कोई है ही नहीं सर, बात ही नहीं कर पाते हैं किसी से। आई कैन रिलेट टू दैट, यस। बिकॉज हमारे यहाँ घरों में भी नहीं बोला जाता बिल्कुल भी। दोस्त यारों में तो अगर बोलो तो वैसे ही छेड़ते हैं कि हाँ बहुत सर, कहते इंग्लिश हैं बाजी कर कि रहे हो, इंग्लिश झाड़ रही है। हाँ। इंग्लिश झाड़। लेकिन साथ ही साथ जब हम जॉब मार्केट में एंटर करते हैं शेफाली, then it becomes most important thing to learn. Do you agree? राइट सर, क्योंकि फिर वही वो इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में पूछेंगे और वही आती नहीं है सर। Absolutely. हमारे एक्सपीरियंस में ये काफी रहा है कि when स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो लोग अपने आप को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्स कर पाते हैं बिफोर द इंटरव्यूअर स्टार्ट्स इन इंग्लिश, वो अपना एक बहुत बेहतर इंप्रेशन पहले ही 30 सेकंड्स में बना लेते हैं, रादर देन पीपल, वेरी स्किल्ड पीपल, कई बार वो भी बैक स्टेज पे हो जाते हैं क्योंकि अपने अपने आइडियाज को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, चीजों को बता नहीं पाते। और ये लोग जो है, खासकर जो आप जैसे यंग जनरेशन है, अगर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, एक लैंग्वेज का अगर प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, देन यू कैन एक्चुअली कट ऑफ एनी इंटरव्यू स्टेज व्हिच इज अ फर्स्ट स्टेज फॉर एनी कंपनी। एंड नॉट ओनली दैट, आगे फैमिली भी बढ़ती है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज का। डू यू एग्री? बिल्कुल सर, क्योंकि दोस्त ऐसे मजाक तो बनाते ही हैं, सभी लोग कहते ही हैं, पर हाँ ये कि अच्छा बोलेंगे तो फिर कोई कहेगा नहीं। कहेगा नहीं और इज्जत ज्यादा करेंगे। ये सर। ग्रेट। शेफाली, आप जैसे अभी आप नॉन वर्किंग हैं, आप कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, कैन यू ज्वाइन एन ऑनलाइन बैच व्हिच इज फॉर 5 days, 1 hour 30 minutes each? Will that work for you? Will you be interested in hearing more about that? हाँ, बट मुझे आइडिया नहीं है सर, मतलब ऑनलाइन कैसे क्लास होती है, क्या होगा। ओके, वो हम आपको डिटेल कर देंगे। एज सच, ऑनलाइन क्लास जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। फैकल्टीज होते हैं, सीनियर फैकल्टीज होते हैं, स्टूडेंट्स का आपके जैसा ग्रुप होता है, सब अलग अलग लेवल से आ रहे होते हैं, अलग अलग सिटीज से आ रहे होते हैं, तो बड़ा एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा वहां माहौल नहीं है, अभी मैं आपके ही फ्रेंड सर्कल को चार को बिठा के कुछ सिखाने लग जाऊं, वो माहौल कभी बनेगा ही नहीं, बिकॉज नोबडी विल टेक इट सीरियसली। But when you interact somebody from Delhi, somebody from Lucknow, somebody from another city, or somebody from your city itself जिसको आप नहीं जानते, तो आप एक डेकोरम मेंटेन करके बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलते हैं उसको लेके।
I'll end it over here. Just so थोड़ा सा कोशिश किया, क्योंकि मेरे लिए भी नया है, मैं जस्ट आपको एक तरह का एग्जांपल ही दे रहा था कि कहीं पे उनके आंसर सुन के रुकने का नहीं है, आगे बढ़ानी है कॉन्वर्सेशन। Continue, yeah. And it और has to be अपने connected. हाँ, आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। मुझे नहीं इंक्लूड करना, ग्रामेटिकल एरर होती है, हेजिटेट, अगर आपने हेजिटेशन बोला होता तो फिर मैं हेजिटेशन पे लगा रहता। आपने बोला बोल ही नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं मैंने 2-4 क्वेश्चंस उसी से रिलेवेंट में किया। आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बंदा कितना सपोर्टिव और कितना खुल रहा है। अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट है शेफाली, एक्चुअली बिकॉज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। आप चाह के थोड़ा सा मोल्ड आउट कर रहे थे, बट अगर मैं वो भरतपुर राजस्थान वाला जो कैंडिडेट था, उसने तो बहुत सारी चीजें बोल दी थी उसके अंदर, बताई थी, राइट सर। तो वहां पे आप कहीं पे भी उनको पकड़ सकते थे और उनकी और ज्यादा हेल्प कर सकते थे समझने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो कोई एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में कोई कोर्स करें। अभी एक चीज और मैंने कोशिश करी थी, अगेन ये मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं फॉलो कर रहा था, बस कॉन्वर्सेशन कर रहा था, बट मैंने कोर्स नहीं इंट्रोड्यूस किया अभी तक आपको। यस सर। मैंने 2-3 येसेस, काइंड ऑफ येसेस ले ली थी। यू वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू डिले डाले कि कैसे होता है कि नहीं होता, आपने बोला जान के, व्हिच नॉर्मली पीपल डू, ठीक है, बट मैंने भी अभी तक अपना पूरा कुछ कहानी सुनानी शुरू नहीं करी। मैंने बोला 1.5 घंटा कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा। अभी जैसे जैसे मुझे इंटरेस्ट आपका पता लगता रहेगा, मैं और कॉन्वर्सेशन करता रहूंगा। इस कॉल को देखो, अगर मेरे पास 20 कॉल पड़ी हैं बैग में, जरूरी नहीं है मुझे 20 के 20 को टच करना है, जरूरी ये है इस 20 में से 5 को कन्वर्ट करना है। वो पहली कॉन्वर्सेशन में पहला कन्वर्जन हो सकता है, दूसरी में हो सकता है, तीसरी में हो सकता है, ठीक है। अभी एक और करते हैं, कोशिश करते हैं। अब मनीष जी को बनाते हैं स्टूडेंट, कोई कोशिश करते हैं कुछ और, शायद आपको सुनने से कई बार होता है कि आइडियाज आ जाते हैं। और प्लीज, दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्जन, यू नो योर सब्जेक्ट मैटर बेटर। मैं सिर्फ उसमें मॉड्यूलेशंस लाने, एक इंटरवेंशन जिसे कहते हैं ना, वो बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम चूक कर रहे हैं। आप ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मनीष जी एक बार आप बनिए स्टूडेंट। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, एसीएल एजुकेशन। मैं नो नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम राजीव है सर। राजीव जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास। बताइए राजीव जी, कैसे सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर वो इंग्लिश वगैरह सीखनी थी जो आप लोगों ने ऐड किया था एडवर्टाइजमेंट, वो फेसबुक पे देखा था मैंने। ओके, फेसबुक पे आपने हमारा ऐड किया था, ग्रेट। राजीव जी अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ? हाँ बताइए सर, क्या बताना है? थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप मुझे बताएं, थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, आपकी स्टडीज के बारे में, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, फैमिली के स्ट्रक्चर और कोई प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इस तरह से कुछ। फादर तो सर रिटायर हो गए हैं, वो तो कुछ करते नहीं है। ओके। बाकी मैंने अभी बीए किया है और अभी सेल्स की, ये जो यूरेका फोर्ब में होता है ना, ओके ओके, सेल्स, वेरी वो गुड, उसका काम किया, अभी 1 साल से कर रहा हूँ। ग्रेट और सर। बस वही दौड़ भाग रहती है। अब अच्छी अच्छी कॉलोनी में तो कई जो लोग होते हैं तो वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मैं वहाँ पे हिंदी पे आ जाता हूँ, तो हिंदी पे फिर बड़ा अजीब लगता है। तो मुझे लगता है मुझे आनी चाहिए इंग्लिश, में कम से कम जवाब दे पाऊँ। राजीव जी, सबसे पहले बहुत बढ़िया बात है कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी और बेहतरीन बात तो ये है। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ सेल्स के अंदर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का होना और उस कॉन्फिडेंस का होना, कॉन्फिडेंस तो आप में काफी लग रहा है खैर, बट एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज से वो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, वो इंटरेक्शन कितनी रिच हो जाती है। आप कह रहे हैं कि जैसे कॉलेज जाते हैं, आप सेल्स करते हैं, आपके ग्रुप में और भी लोग होंगे मेरे ख्याल से, जिनके साथ आपके टीम मेंबर्स होंगे जो आपकी लेवल पे काम कर रहे होंगे? हाँ, एक दो लड़के हैं सर जो मेरे अंडर काम करते हैं। ओके, और आपके साथ वाले जो हैं, कोई और भी टीम मेंबर्स हैं? हाँ, एक आध मेरे सीनियर हैं। ओके। और कभी कभार जब कोई केस फंस जाता है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपने सीनियर को बुलाता हूँ। ओके, वैसे तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। ऑलराइट।
सो कोई पर्टिकुलर वाक्य जहाँ पे आपको लगा हो कि रियली अगर लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी होती तो मतलब ये तो डील हो ही जाती, इसमें कोई डाउट ही नहीं था, बस वो कहीं ना कहीं मेरा जो व्यवहार था वहां कहीं कमी रह गई। सर मैं सर्विस वाला हूँ, मेरा सेल से मतलब नहीं है, हाँ, मतलब मैं सर्विस के लिए जाता हूँ। आप सर्विस के लिए जाते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। सर्विस के अंदर सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जी। आपके जो कोलीग्स हैं साथ में, आपको क्या लगता है कि ये सर्विस लाइन में और यूरेका फोर्स में कितने टाइम तक ये अपने प्रमोशन तक पहुंच पाते हैं? सोचा नहीं सर कभी, अभी तो काम ही कर रहे हैं। अभी काम ही कर रहे हैं। कोई और आपके होंगे सीनियर्स वहां पे, वो भी सेम लेवल पे हैं, सर्विस में? या हाँ कोई सर, जल्दी जल्दी छलांग लगा के आगे बढ़ गए? अभी तो वो कहीं नहीं जाते, अब तो ऑफिस में बैठ के हम सबको ऑर्डर भेजते हैं कि वहां जाओ यहाँ जाओ, अच्छा, तो बस यही चलता रहता है। तो पर हाँ, मतलब अब वो विजिट नहीं करते, पर पहले करते थे। ओके, पर बड़े बढ़िया इंसान है वो सर। ग्रेट ग्रेट। आपने कभी सोचा कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा इसमें? आप आपके आपके कैरियर को अगर हम देखें तो उसमें आप नेक्स्ट क्या अचीव करना चाहते हैं? नेक्स्ट तो सर नई जॉब या न्यू पोजीशन इन द कंपनी, कुछ तो सोचा हाँ होगा। ये सर मैं अभी इतना नहीं सोच पाया हूँ। अच्छा, अभी तो बस ये लगता है कि थोड़ा इंग्लिश अच्छी हो जाए तो शायद तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी और राइट, बेहतर कस्टमर मिल जाएगा। अभी बहुत ज्यादा नहीं सोच पाया हूँ। ओके। तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और प्रमोशन हो जाएगा और बेहतर कस्टमर मिल जाएगा। हाँ सर, जी। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज की कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसी दिक्कत आती है कि आपकी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है। आपको सीनियर और कई बार आपके कोलीग्स उतना सीरियस नहीं लेते जब आप अपने एक इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ जाके चार बातें या कभी कभी अपने जूनियर्स को इंग्लिश में डांट लगा दें अच्छी सी। अभी तो मजाक उड़ाते हैं, सर ने ये वर्ड अलग बोल दिया और ये वर्ड गलत बोल दिया, ऐसा कभी हुआ? हाँ, होता है सर थोड़ा। बड़ा होता है सबके साथ होता है सर, हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी ऐसे ही सीखा है धीरे धीरे करके। सर, जहां तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, यू हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस सर, पर्सनालिटी भी आपकी बहुत चार्मिंग है, यू आर रियली नाइस पर्सन। और जहां आपके काम को भी मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, हमने भी किया हुआ है कुछ ऐसा और काफी स्टूडेंट्स के साथ हम बात करते हैं। तो हमारा ये ACL एजुकेशन है, हम लास्ट 26 ईयर्स से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करा रहे हैं। अराउंड हमारे 6 सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस हेयर, और ऑनलाइन हम क्लासेस देते हैं। क्योंकि बहुत डिमांड काफी हमारे पास आ गई थी, तो वी हैव स्टार्टेड दैट। बहुत सीनियर फैकल्टीज इसके अंदर मेंटर करते हैं, और आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन से लेके और बड़ी काफी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म देते हैं उनको, ताकि वहां पे वो मिलके सीख सकें, एक जैसे सीख सके, और उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। मनीष, जस्ट अ मिनट। श्योर श्योर श्योर। राजीव जी, हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि लोगों को लगता तो है कि लैंग्वेज करके हम कर पाएंगे, लेकिन प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। आपने पहला कदम तो लिया, आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, शायद आपको थोड़ा और समय लगेगा, बट पहले उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आर यू रियली इंटरेस्टेड? आप क्या अपने करियर के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फैमिली के लिए, तरक्की के लिए 1.5 घंटा ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को? ये कोर्स 5 दिन हफ्ते में होता है। टाइमिंग हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, अलग अलग बैचेस आते रहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्या आप इतना कमिट कर सकते हैं? क्योंकि ये हाँ बेयर सर, मिनिमम है, ये कर सकते हैं। परफेक्ट राजीव जी, बिकॉज यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब आ गई। योर वॉइस वेंट अवे इन ओके, बिटवीन। सो Yes, sir. आप 1.5 घंटा अगर 5 दिन अपने आप को कमिट कर सकते हैं, तो एक कमिटमेंट ACL भी करता है जो लास्ट 26 ईयर से करता आ रहा है, कि वी इन्वेस्ट इन योर ग्रोथ। हम हर कदम उठाएंगे आपके साथ, हर कोशिश करेंगे जहां पे आप इसको सीख के और बेटर ही बेटर होते जाएं।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जो जॉब कर रहे थे, जो और तरह के काम कर रहे थे, आफ्टर डूइंग द कोर्स दे फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट और वो आगे बढ़े। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर दिस कॉल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कुछ एक लिंक, आप जरूर देखिएगा, ये यूट्यूब पे आप हमारे जाके देख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप होगा। अगर ये बात कुछ समझ आ रही है आपको तो कैन आई टेक यू टूवर्ड्स व्हाट द कोर्स इज और क्या उसकी डिटेल्स हैं? हाँ सर, बताएं सर। ठीक है, सो आई नीड इट ओवर हियर। कोई भी अपने आप से नहीं बोलने वाला कुछ भी, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के साथ जुड़ना पड़ेगा। बेशक आप ये 10,000 का कोर्स बेच रहे हो या आप 5,000 का कोर्स बेच रहे हो या आप IIM या IIT का कोर्स बेच रहे हो जो लाखों का आता है। हाँ, उनके नाम इतने बन गए हैं कि डिमांड इतनी है, सप्लाई कम है तो लोग लाइन लगा लेते हैं। बट उसी के अलावा अगर आप एमिटी इंस्टीट्यूट चले जाओ जहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी हैं और बाकी सब भी, वो भी सेम चीज कर रहे हैं। Similar story. This is the similar story of life. You have to relate to that audience that you are talking to. वो बहुत घुमाएगा, मनीष जी ने बड़ा घुमाया राजीव बन के। He didn't came outright कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, बस इंग्लिश पे टिके रहे। कहीं थोड़ा सा लाइफ को टच करना। पता नहीं मनीष, व्हाट्स योर फीडबैक? थोड़ा लगा आपको कि कुछ अलग थी कॉन्वर्सेशन? नहीं, बिल्कुल अलग थी। मतलब सबसे पहला तो फर्स्ट ये जो कॉल हम जिसको कर रहे हैं, अगर उससे हम कनेक्टेड हो गए तो हम एक्साइटेड होंगे अगली कॉल के लिए। नहीं तो हम कॉल कहीं ना कहीं डिसऑनर करेंगे और हम ये लकीर पीटते रह जाएंगे, पता नहीं बड़ी इनसिंसियर ऑडियंस होती है, आते क्यों नहीं है। एक्चुअली सॉइल ही फर्टाइल नहीं हुआ तो बीज आएगा ही नहीं बाहर। और हम सोच रहे हैं हमने इतना टाइम लगाया, तो हमें भी थोड़ा इसको रिफोकस ये करना होगा। हमने टाइम दिया, pretty fine, it's not our time। उस टाइम में से वो वैल्यू क्या लेके गया। करेक्ट। और अगर वो वैल्यू ले गया तो वो मोर देन इंटरेस्टेड होगा, because in our offline courses also people refer to people। Similarly we have to understand how will they listen to us if we have raised ourselves in a right manner, and the key line is हम relate कैसे कर रहे हैं। and the beautiful words which Gaurav has said, that these are stages, not exact dialogues we have to copy। Stage we have to go this way, this way, this way, and in the end तो course के बारे में बताना ही है। It becomes so easy to tell। Otherwise बार बार reconfirmation हम करेंगे and we are not talking what they have a problem। That will be। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो मुझे आपसे अच्छा लगेगा बात करके, तो अब जब ये कहेंगे क्यों ना जिस तरह से आपने मेरे से बात की, एक बार आप हमारे एक सीनियर टीचर से भी मिले। और ये एड ऑन सर्विस है, ये सबके लिए नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है ये, मतलब अभी शिफाली मैंने जो 2 कॉल्स सुनी, फर्स्ट कॉल में स्पेसिफिकली मुझे याद है आपने उसको ऐसे बोला कि ये मतलब आपका सेल्स प्रोसेस है कि आप सबको बात आप कर लो, नेक्स्ट स्टेज यही है, ये कॉल रखो और दूसरी कॉल जब भी आप कहोगे तब ज्वाइन करेंगे। नो पॉइंट इन डूइंग दैट। पॉइंट इज अगर आप अभी सेल कर सकते हो, मतलब आइडिया सेल कर सकते हो, पेमेंट की बात नहीं कर रहा, आइडिया सेल कर सकते हो, दैट इज इनफ। इफ ही इज रेडी टू पे दैट्स फाइन। इफ ही सेज नहीं, अभी कुछ ना कुछ आपको उसकी वॉइस में पता लग जाएगा। मेरे को तो पता लग गया था उसकी बातें सुन के कि ये बंदा दोबारा नहीं आएगा। अभी ये वाले कैप्चर पॉइंट पे आपको पहुंचना है कि इसको और कहां पे बूस्ट देना है। ये बूस्टर है, तो बूस्टर कब यूज करना है कब नहीं करना, उसको मोटिवेट करने के लिए। और आपने हर स्टेज पे उसको, हम इसको टेक्निकल वर्ड कहते हैं बाय इन। बाय इन मतलब कि सामने वाला कह रहा है यस आई एम इंटरेस्टेड, उसे बार बार ये नहीं पूछना कि आप इंटरेस्टेड हो, क्वेश्चन चेंज करते रहना है, फॉर्म चेंज करते रहना है, लेकिन उसकी हामी जरूर लेनी है। Isn't it करके नहीं, isn't it, and then you jump on to the next one। I please request you, don't take it lightly, you please listen to that recording completely 15 minutes। दोबारा से आप मनीष जी और आप दोनों सुनिए बेशक, और आपको पता लगेगा क्या हमने यहाँ बातें डिस्कस करी। यस सर। ठीक है। और मनीष, मैं आपसे कॉल अलग से वो बात करूंगा। शिफाली यू मे लीव द कॉल, और बाद में आप ऑफलाइन कर लीजिएगा। मैं बस 1 मिनट मनीष जी से लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you sir, thank you so much sir। Yeah,
Manish, very quick feedback on the calls that I have listened. I have, I think, gone through 3 of those, 2.5 kind of. ठीक है? Yeah. Number 1, एक आप ना उसमें एक आप चीज यूज कर रहे हैं which is very good in the classroom training when once the student has taken the admission. That Okay. 90% conversation communication is body language and 10% is the conversation. Correct. Actually. Verbal, non-verbal. Yes, which is absolutely a fact. Anyone who studies understands that. Please don't start using it in your intro calls. Okay, fine. The reason being that person is coming for specific English learning. आप उसे कहते हो जी 90% तो ब्रॉड लैंग्वेज है, वो तो खुद मैं कर लूंगा योगा करके. Problem. That's not a selling point. That could be your first lesson in the class. That's fine, but not here. You have to focus because he is coming. You lost me. बीच में हाँ fraction of second के लिए your voice goes away. My system is somehow very funny way of weird. It's weird today. मैं repeat करता हूँ. That person has joined or trying to call you for spoken English. नहीं, PCC वाला मुझसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन कर रहा है. ये उससे डिस्कशन हो रहा है. ये उससे अच्छा, दूसरे वाला तो LTC वाला भी था. LTC वाला भी था. आपको PCC वाले से भी यही बात करनी. ओके. ये आपने कोर्स में आप बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पे कीजिए. That is a fact. But right now he is more interested in English, like English and conversations. Not the body language. Yeah, it could be an add-on. So you don't state 90% the body language. So it is just going against you. Okay. ठीक है. Secondly, आपको I'll be very brutally honest because it's not working and please be honest. You are in the first interaction with the lady where the lady is speaking quite confidently and she's conversing in English. आपने उनको एक presentation दिखाया और presentation के through लेके गए उनको. और टोटल जो आपका जो सिनेरियो था ना, इवन विद द गाय फ्रॉम कुवैत, उससे पहले वो कॉल में जंप हो गए थे, दूसरे की एक कॉल थी, उसमें तो ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई थी, आपकी पर्सनल डायलॉग हो रहा था वो तो. और बट स्पेसिफिकली विद द लेडी व्हाट आई फाउंड आउट, यू आर इन अ क्लासरूम मोड. ओके. यू हैव स्टार्टेड टीचिंग. एक मिनट, आपके नोट्स मैंने एक जगह और बनाए थे. लेट मी जस्ट रेफर बैक टू दिस. या so first feedback is same. Please do not use sir or ma'am. आ जाता है कभी कभी, that's fine. मेरे भी आ जाता है कभी कभी, like 10% times I also do it if I just want to emphasize on somebody's or give importance. But try to have that habit of first stating the name and keep trying. पता नहीं, ये बहुत honestly अभी कितना टाइम है हमारे पास? आपका कैंडिडेट आया हुआ है 2 बजे. Just 1 minute, so we will breach that limit for sure for 2 minutes. But हाँ, वो already wait कर रहा है. तो डिटेल में कर दो. मैं इसलिए बोला क्योंकि अगर बीच में पीसीसी तो क्या क्या मेरे बारे में हम आप बाद में बात कर लें 15 मिनट, क्योंकि मुझे चाहिए होगा. मेन तो माय वर्क इज सफरिंग एंड श्योर. बस फिर आपको अभी एक मेजर फीडबैक मुझे यही देना था. इन केस आज में आपकी कोई कॉल होती है, 90% 10% वाला एग्जांपल आप नहीं यूज करेंगे. जस्ट मूव इट आउट. ठीक है. दैट्स वन थिंग. रेस्ट यू कंटिन्यू. ठीक है. We will have this separate discussion. ठीक. Tomorrow or day after, whenever you say. Yeah, I'll set it up. Thank you. Okay, thanks Manish. Bye. And please listen to what Shefali conversation is. Probably आप दोबारा सुनिए अब मेरी इस कॉल के बाद. उनको भी बोलिए कि वो सुन के आपको बोले हाँ मैंने सुना. और अब इसको जरा थोड़ा सा एक 2 कॉल्स आप प्रैक्टिस बनाइए, रिकॉर्ड करके देखिए. बहुत कुछ पता लगा. मतलब इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट पे था मैं. मतलब पहले 2 कॉल सुन के मेरे अंदर ऐसे होने लगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. मतलब आखिरी तक सुनी थी, फिर मैंने कहा नहीं, फोकस शुरू में करेंगे सिर्फ. गौरव, जब आप मेरे बारे में फीडबैक की बात करेंगे, एक टेल मी अबाउट माय पर्सनालिटी आल्सो. श्योर, हम बात करेंगे उसको. मेरे पास अभी एक रिकॉर्डिंग भी बची हुई है. आई हैव टू गो थ्रू दैट एंड देन विल हैव दैट कन्वर्सेशन. ठीक है. ऑलराइट मनीष, टेक केयर. बाय बाय. बाय. थैंक यू.